Ladies and gentlemen, welcome to the Mind Your Buffalo podcast. This is your host Ravikant, aka the Buffalo Intellectual. And now, today, I am in my friend Anurag's studio. Anurag is, of course, well known to every person who listens to my podcast. We've done a lot of episodes together, and it is my great honor and privilege to welcome my friend Anurag Minus Verma on this episode. Anurag, welcome to the Thank, Mind Your Buffalo podcast. thank you so much. It also feels surreal because I recorded so many podcasts with you as a host. Right. So this might be, I think, we recorded one previously, Yeah, but yeah. that was an audio podcast. Right. So for the first time, I'm in the Right. So video one you're in your studio setup as a guest for the as a first guest time. for the first time, and I think our journey were also very parallel. Right. We parallelly, Um, navigated through this life. so for the newer audience, I want to kind of say this that Anurag and I, this is a friendship which was born literally in an Instagram comment section. Like I think it was the heady days of 2020 COVID, and I'd put some post, and Anurag had like written some comment, and I thought it was like some Savarna person, and I was like, please don't say much, and then he was like, अरे नहीं मैं नहीं हूँ, तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है फिर then I completely listened, and he had a podcast. I think Anurag was one of the first people who called me on his podcast. A lot of people Yeah. like that. वहाँ से शुरू हुआ वहाँ था से पूरा. शुरू and that was I think मेरे podcast के लिए भी it was the episode which is still I think Right. one of the most listened episode. That was episode number 10. Because when I started the podcast, after the first one or two episodes, I was like, यार मेरे से नहीं हो रहा. Maybe I'm good. And you had given me this very interesting advice कि पहले 10-15 episode just करो. Yeah. Just do it. So now when I get students coming to me very often, कि I want to start a podcast, all students want to, young people want to start a podcast. What should we do? So they are very heavily into gear talk. ये mic होना चाहिए, ये होना चाहिए. And I always give them your advice, which is first just do it. पहले आप 10 एपिसोड करो, देन यू विल हैव अ व्हाट यू हैड सेड इज सब तुमको समझ में आएगा चीज़ क्या है, फॉर्मेट क्या है. एंड आई थिंक दैट वाज द एग्जैक्ट point, and that time you were, I think, my first formal guest on that show. So I think gear और स्टूडियो से आई थिंक इससे कुछ नहीं होता टेक्निकली. मैंने जब शुरू किया था इट वाज लिटरली ऑन जूम और मेरे पास कोई माइक भी नहीं था इनिशियली. तो आई थिंक समहाउ you started, and if you are saying something which is interesting for people, then you build a certain kind of audience, and building an audience I think is a very difficult part, and that requires a sustainable effort. I think the way one builds an audience is a function of a very interesting editorial curation. Yeah. And मैंने ऐसे बहुत बार बोला है कि I think you're one of the best podcast interviewers going around right now, because you cover a range of guests. एंड दिस ऐसा नहीं है कि वो गेस्ट सिर्फ तुम्हारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, वो अलग अलग जगह भी जा रहे हैं, बट समहाउ द कॉन्वर्सेशन विथ यू इज द वन विच स्टिक्स आउट. सो इफ द पर्सन गोज टू 5 different platforms, their conversation with you is the one which has the most views. So I think somewhere you've cracked a very interesting editorial voice, and I want to kind of use that as a like talking point, because I feel it is because you're a great student of the social media discourse, but cultural discourse in general. It's like a lot of our conversations when generally we are catching up are about just not about the, let's say if a film is being discussed, not about the film, but how is the film being talked about. So I think you have a very sharp insight on that, and today we are here to talk about your book, The Great Indian Brain rot. Brain Rot, Love, Lies and Algorithms in Digital India. मैं का नाम exactly बहुत पढ़ बड़ा, लूँ. मतलब मैंने बुक नॉर्मली लिखने के बाद आई कांट सी माई बुक Yeah. बिकॉज आई मीन आई फील समथिंग इज अनकम्फर्टेबल अबाउट इट. सो मैं ऐसे लाइक मैंने घर पे भी नहीं रख रखी है अपने, लाइक आई कांट सी इट. It's very So, interesting. My book also, I don't have a copy with it. It's funny because we both started out, we both got book deals more or less the same time, yeah. and our books have more or less come out at the same time. And though very different books, but in a sense, very one common thread I would say is both are very interesting histories of the last 25 years. Yeah.
एंड मैंने बहुत जगह बोला है कि योर बुक इज ए window into the last 25 years of culture. And I think it's also, I wanted to ask you, like, what do you think, what is the reaction to this? Because writing about internet and culture is a topic where your audience, like, this is not writing about, let's say, nuclear physics. Audience is not an expert on the subject. Audience भी दिन रात एल्गोरिथम पे ही बैठी है, दे ब्रेन रॉट उनका भी हो रहा है, सो दे ऑटोमेटिकली थिंक दैट दे आर एन एक्सपर्ट ऑन ऑल्सो द सब्जेक्ट दैट यू आर राइटिंग. वाई शुड आई रीड योर बुक, ये तो मुझे भी पता है. What do you think about that? आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इंटरनेट के बारे में किसको पता है और किसको नहीं पता है, और कैन समबडी क्लेम दैट दैट पर्सन नोज इंटरनेट. सो आई कांट क्लेम इट पर्सनली, बिकॉज मैंने बुक के शुरुआत में लिखा है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, एंड राइटिंग अबाउट इंटरनेट इज ऑलमोस्ट लाइक इंटरव्यूइंग अ घोस्ट. सो यू डोंट नो इट इज़ देयर, इट इज़ नॉट देयर. इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अगर मैं एज अ स्कॉलर मुझे टीवी के बारे में लिखना है कि टीवी में कितना पिछले 25 सालों में किस तरह के चेंजेस आए, हीट आया, या फिर उसका नैरेटिव चेंज किस तरह से हुआ, मीडिया ऑनर कैसे चेंज हुए, तो मैं सिर्फ जितने भी टीवी चैनल हैं सबको देखूंगा. और कितने होंगे, मतलब 100 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे, तो उन सबको देख के आई कैन डिराइव अ सर्टेन कंक्लूजन अबाउट टीवी के बारे में या फिर टीवी यूनिवर्स के बारे में. सिमिलर विद न्यूज़पेपर, आई कैन डिराइव अ सर्टेन कंक्लूजन. बट इंटरनेट का स्ट्रक्चर इस तरह का है ही नहीं कि आप 25 चीज़ों को देख के समझ सकते हो, 1000 चीज़ों को देख के समझ सकते हो. तो राइजोमेटिक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ से भी निकल रही है, उधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है. सो व्हाट यू से अबाउट सर्टेन थिंग, यू विल बी शॉक टुमारो कि वो है ही नहीं, वो उस चीज़ का उल्टा भी ट्रू है. या फिर जो सब कल्चर आपने देखे उसके से अलग सब कल्चर कोई एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं. और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने बोल दिया कि इंटरनेट का कल्चर इस तरह का है, तो इंटरनेट का कल्चर हमेशा फ्लूइड रहता है. इट्स नॉट अ स्टैटिक कल्चर कि मैंने अभी बोल दिया कि इस तरह का है, लेकिन वो 4 महीने बाद चेंज हो जाएगा, 5 महीने बाद चेंज हो जाएगा. तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ इस बुक को लिखने में यही थी कि मैं जो लिख रहा हूँ विल इट बी रेलिवेंट. मतलब हो सकता है कि इसका पूरा कल्चरल टेरिटरी चेंज हो जाए 1 साल के बाद में, तो हाउ शुड आई राइट समथिंग विच समबडी कैन रीड इवन आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर. तो ये है. और एक मेरा ये है कि मुझे थोड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता. दैट मेक्स writing also difficult, because I can like sweepingly Like, give an say example. that and we are a lonely generation. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. Like we have lost something through internet, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. बट इसका मीनिंग क्या है, किसी को समझाओ तो वो समझा नहीं सकती कि हम कैसे लोनली हुए, और इंटरनेट से पहले कि हम लोनली नहीं थे, या फिर सिर्फ इंटरनेट से हेट का ही मीडियम है, एक आपने दे दिया कि इसमें हेट होता है. तो आई थिंक इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट से लोगों ने ज़्यादातर इंटरनेट को देखा डूम्सडे की तरीके से. बट अगर आप इन सब को रिजेक्ट करते हो और सब कल्चर्स के अंदर जाके यू आर डिराइविंग समथिंग अबाउट इंटरनेट, एंड ऑल्सो कीपिंग इट ओपन एंडेड, नॉट गिविंग अ डेफिनेटिव आंसर, that becomes I think little more difficult to write about, and that was personally challenging for me. और दूसरा, मुझे पॉपुलर कल्चर की बजाय मुझे लाइक जिसको लो ग्रेड कल्चर बोलते हैं उसको समझने में बहुत मज़ा आता है, अपार्ट फ्रॉम जो हाई कल्चर या फिर उसको समझना. तो उसमें भी आप जब जाते हो तो आपका एट दी एंड कंजम्पशन जो करेगा वो तो हाई, उस पे जो जो उस कल्चर को देखता है वो करेगा. तो उनको समझ नहीं आएगा कि मैं एक बी ग्रेड कल्चर के बारे में क्यों लिख रहा हूँ, या फिर क्रिंज कल्चर के बारे में क्या लिख रहा हूँ. तो उनके लिए वो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है. एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे माइट थिंक दैट इज इट ऑल्सो रेलिवेंट, वाई आर यू स्टडिंग इट, दिस माइट नॉट ये बी तो रेलिवेंट. तुमको बोला भी जाता था, मेरे लाइक, को बोला गया बहुत बार बहुत कि बार. वाई आर यू स्टडिंग क्रिंज कल्चर, और इन कल्चर के बारे में क्या कर रहे हो. तो आई एक्सप्लेन कि वो जो जो मैं एक टाइम पे बोल रहा था वो एक बहुत ही मेन स्ट्रीम आज के टाइम में बन गया, इंटरनेट की लैंग्वेज बन गई. तो ये सारी जो रिसर्च और जो बोलने की स्टाइल, इट बिकम्स डिफरेंट. एंड ऑल्सो माई आइडिया इज़ नॉट जस्ट टू से कि ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है. उसमें तो मुझे मज़ा नहीं आता स्टोरी में, जस्ट अ स्टोरी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. इट इज़ ऑल्सो हाउ इंटरेस्टिंगली यू फ्लो, लाइक म्यूज़िक जैसे होता है, धीरे धीरे वो अनफोल्ड होता है टाइम के साथ में. तो सिमिलरली देयर हैज़ टू बी सम ब्यूटी इन reading. That was my attempt. I don't know how much I'm successful, but these were my challenges while writing it. No, I think there's a very interesting flow to the book. I think before we started recording, I was telling you कि many of the chapters of your book feel like could have been books in themselves. Yeah. Because it's almost, मैं जब पढ़ रहा था, it felt like you've opened these windows and your reader is free to go into these worlds.
and it's like a Spotify Wrapped of the last 25 years of culture. But you haven't just been like a ye tha fir ye tha ye tha. You've kind of tried to narrativize this, and like right, your book starts off like we are not as you'll call digital natives. Internet came after we had already started entering our teens and so on. And you've done a very interesting commentary on the early days of the internet. Jab, cyber cafes are there and people are going there for chat rooms and uh, maybe accessing pornography or whatever. And then you link it to, the contemporary or अब तो ये भी पुराना हो गया है, the idea of dating apps. Yeah. Okay, like from the Yahoo Messenger chat rooms to profiles on Hinge, it's somehow different manifestations of the same search. तो क्या खोज रहे हैं यहाँ पर? Like what is this search which is never ending? Some kind of a human connection at the end कि जो मतलब इनिशियली जो जितनी भी और ये ऐप जो होते हैं सारे दे गिव यू एन इल्यूजन ऑफ कंपेनियनशिप कि समबडी जो मैं बुक में लिखता भी हूँ कि समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू या फिर कोई वेट कर रहा है या फिर जिसके साथ तुम हो उससे भी कोई अच्छा तुम्हारे लिए हो सकता है। तो इस इल्यूजन पे इन्होंने काफ़ी टाइम तक खेला, बट अभी हमें पता है कि डेटिंग ऐप का ज़बरदस्त फटीग आ चुका है। अभी डेटिंग ऐप पे रहना लोगों को लिए क्रिंज हो गया कि इट्स अ क्रिंज थिंग, व्हाई आर यू डूइंग, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, फेसेस बहुत हैं, लोग बहुत हैं, बट मिलता कुछ नहीं है। तो ये एक जनरल लोगों का अजम्पशन है। ऑब्वियसली जोरान ममदानी के बाद थोड़ा रहा, बट अब जोरान भी कैंसिल हो गया दोबारा अभी रिसेंटली। फिर से हाँ क्या मतलब उसमें? एक किसी को एंडोर्स किया था उसने, वो जेनोसाइड की सपोर्टर थी और वो अच्छा। हो गया, तो अब वो भी चेंज हो जाए कल्चरली। अब ये मैं कह रहा हूँ ना, कल्चर इतना जल्दी चेंज होता है हर 3 महीने में। कोई हीरो है 3 महीने में, वो फिर 2 महीने बाद मिले, तो हमने तो देखा है बहुत क्लोजली, तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि ये कैसे See, चेंज होता है। even dating apps have sort of become like Insta Reels. Like the usage, I feel like that कि जब आप reels देख रहे हो, like you're probably like sitting on, like you're shitting on a commode and like you're just going through reels. That mindless consumption कि आपने 5 रील देखे कि 15 रील देखे, आपको आइडिया नहीं है। डेटिंग ऐप में भी आपने 5 प्रोफाइल देखे कि 15 प्रोफाइल देखे इन वन सिटिंग, आपको आइडिया नहीं है। सो इन दैट सेंस search of a human connection has actually created a more dehumanization. Do you think कि from the days of the early days, जो तुमने मतलब तुम्हारी बुक में तुमने अपने साइबर कैफे वाले को थैंक यू भी बोला जिसने पहला साइबर कैफे खोला पिंटू था गोदारा, हाँ। हाँ, कि do you think from that era to this point that same thing has not changed, this idea of finding a slightly deeper human connection, and that has actually created more dehumanization? I know you don't like sweeping statements, but हाँ, I'm बट just डिह्यूमनाइजेशन से बड़ा आई वुड से देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ वीडियो गेमिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हर चीज़ में हम एक वीडियो गेम की तरह खेल रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स भी वीडियो गेम है कि Right. हमने इसको तोड़ दिया, हमने इसको तोड़ दिया। ट्विटर पे जाओ, कौन कौन इससे एग्री करता है, कौन कौन इसको तोड़ता है, इस तरह के आते हैं कि अब कहाँ मुंह दिखाएगा, अब क्या होगा। इट्स लाइक सम वीडियो गेम इज़ प्लेइंग ऑन। right. तो हिंज के अंदर भी, डेटिंग ऐप के अंदर भी इट्स सम काइंड ऑफ वीडियो गेम, लाइक खच 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 खच, फिर कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। इवन लुक एट दी वॉर इज ऑल्सो लाइक वीडियो गेम। लाइक ऑपरेशन सिंदूर का जो चल रहा था, इट वॉज लाइक विजुअल्स चल रहा है, फिर वो बोल रहे हैं कि ये Memes मार बना दिया, रहे हैं मीम्स उसका। बना रहे हैं, इवन न्यूज़ चैनल वाले वो बना रहे हैं ग्राफिक्स की, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से गिर रहा है। तो वो एकदम ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम चल रहा है, कुछ रियल नहीं है। Right. तो वो एक वीडियो गेमिफिकेशन से डिह्यूमनाइजेशन हो सकता है कि आपको लगता है वो चीज़ रियल नहीं है, इट इज़ समथिंग सम काइंड ऑफ I वीडियो think you गेम। wrote this line which I like recall very often. You wrote somewhere that love is not Instagrammable actually as an emotion, एज ए इमोशन। and it's less DDLJ and more like पैटरसन मूवी Patterson. एक जो हाँ. जिम जारमुश की। So people who've seen that movie will instantly realize Yeah. it is such a movie of like it's a monument of the mundane. Yeah. कि आप जिस चीज़ को romance is not really romantic. So when you say there is a videofication of culture, there is also now rituals. Video games is just a cycle of rituals. Rituals. And which are repetitive and predictive. तो I see sometimes ये podcast वगैरह में
they're like, oh, she said this or he said this, so I sent screenshots to my friend. और फिर वो रेड हाँ, फ्लैग है या ग्रीन हाँ, रेड फ्लैग फ्लैग, ऐसे अब नहीं वो सब होता। उसके ऊपर एक पंचायत बैठ रही है एंड हाँ एवरीथिंग। तो एक नया रिचुअल ही क्रिएट हो गया विच इज सपोज टू क्रिएट इवन मोर। सो इज देयर समथिंग फंडामेंटली अबाउट दिस कल्चर ऑफ और सब कल्चर्स ऑफ द इंटरनेट which actually ends up reproducing this, or is there a possibility of actual community? नहीं, अगर मैं जैसे वो वीडियो गेमिफिकेशन का एक लास्ट पॉइंट अगर मैं बोल दूं कि जैसे अभी एप्स्टीन फाइल वाला चल रहा है, तो पीपल आर सीइंग एज अ वीडियो गेम कि एप्स्टीन का कुछ आइलैंड है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, फिर उनके नाम निकल रहे हैं, फिर उस पर मीम बन रही है। सो इट्स लाइक एप्स्टीन जैसा कोई इंसान हुआ ही नहीं, ये कुछ कुछ वीडियो गेम चल रहा है, This लोग is पीपल आर strange, बिहेविंग हाँ लाइक हाँ दैट, सो हाँ। विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। बाकी ये कंपेनियनशिप आई थिंक मैंने लिखा है इसमें कि कभी इंटरनेट पे मिलती नहीं, लोग ग्रुप्स बनाते हैं कि ये वाला नया ग्रुप आ गया, ये नया ग्रुप आ Right. गया, फिर हम देखते हैं कि उसमें से कुछ रेडिकल वॉइसेस आती हैं जो ग्रुप जिसने बनाया उसके खिलाफ होती है, फिर वो ग्रुप टूट जाता है, फिर नया ग्रुप आता है, फिर वो टूट जाता फिर है, कम बैक होता कम है। बैक होता, मतलब ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कंपेनियनशिप का भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है इसके अंदर, इंटरनेट के अंदर, कि आप बहुत सब लोग साथ आ सकते हो, जैसे कि सारे सोशल मीडिया का ये था कि यू कैन कम टुगेदर एंड एक्ट एज अ होल। तो वो आई थिंक होता नहीं, आप हेट के बेसिस पे बना सकते हो, लाइक यू हैव अ म्यूचुअल हेट देन पीपल कम टुगेदर, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, एवरीबॉडी इज हेटिंग बट समवन। हेट में भी मुझे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, इट्स वेरी रिलैक्सिंग एवरीवनस हेटिंग हाँ, इट्स टुगेदर। वेरी रिलैक्सिंग, एक्चुअली बहुत होलसम है। बिकॉज मैं अकेला हाँ हेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा हाँ। लगेगा कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, कितना बेकार आदमी हूँ, कितना मीन हूँ, बट बहुत सारे होते हैं, देन आई एम अश्योर्ड दैट आई एम मैं विद द ऐसे क्राउड ट्विटर ऑफ में कभी हेटर्स। देखता हूँ ये जो राइट विंग वाला जो पूरा इकोसिस्टम है, तो ये लोग रोज किसी को एकदम वाइल्ड एग्रेसिव वायलेंटली तरीके से हेट हेट करते कर हैं, रहे हाँ हैं, हाँ। लेकिन आपस में इनकी बहुत फ्रेटर्निटी है कि अनुराग जी हैज रिटन सच अ ग्रेट पॉइंट, व्हाट अ ग्रेट थिंकर ही इज, फिर तुम मेरे को बोलोगे, तो वो एक दूसरे के साथ बिग होलसमनेस। होलसमनेस भी है, बट वो भी चेंज होती रहती है, राइट विंग हाँ, में भी ना, देर आर मेनी ग्रुप्स, वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेफ्ट में भी रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, हर तरफ I यही think you चलता है। wrote a very interesting point about this, which is a little generic, but I think it generic matlab it's a little sweeping, but it's a very interesting one where you said right sells hate, left sells guilt, and actually दोनों का mobilizing point वही है वही है। कि the left will, और the left नहीं बोलना चाहिए, the progressive, so called progressive performative जो भी circle है, they will try to catch you कि तुमने क्या गलत किया, अब फिर तुमको गिल्ट कराएंगे। So there's some sort of a digital lynch mob. The right digital lynch mob is pure based on hate. तुम हमारे टीम में नहीं, हम तुमको हेट करेंगे। आई थिंक जो लेफ्ट का जो कोट अनकोट कैंसिल कल्चर का जो एस्पेक्ट था, तो वो राइट ने उसका सबसे अच्छा यूज़ किया है, बिकॉज कैंसिल कल्चर के लिए एक अच्छा खासा प्रिविलेज की बहुत ज़रूरत होती है, बट प्रोग्रेसिवली वी कैन सी दैट लेफ्ट का और लिबरल्स का जो प्रिविलेज है वो थोड़ा राइट विंग गवर्नमेंट जैसे जैसे बढ़ती गई तो उनका कम हो गया, अब राइट का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पुलिस स्टेशन और यहाँ Right. पे इनको किसी को भी कर सकते हैं, तो उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो जैसे पहले लेफ्ट करता था कि इसको एम्प्लॉयर को टैग करो, एम्प्लॉयर सेम चीज़ें करते हैं, इसके एम्प्लॉयर को टैग करो, एम्प्लॉयर को टैग करो, एम्प्लॉयर, Right. फिर उसकी नौकरी हटवा देते हैं, जैसे Right. हमने रिसेंटली भी देखे 2-3 केसेस जहाँ पे कुछ लेफ्ट के जो लोग थे, लेफ्ट या लिबरल के विंग के जो लोग थे, उनको उनको कुछ कोई बात पसंद नहीं है, उनके एम्प्लॉयर को टैग करवा के उनकी नौकरी उन्होंने निकलवाई, जो कि इफ़ यू रिमेंबर वाज अ वेरी लेफ्ट का कल्चर Yes. 2011 2012 में। तो कैंसिल कल्चर के अंदर भी देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ हु होल्ड्स द पावर, देन इट Right. बिकम्स Also, it is not a thing which aligns very well with structural power. Like मैं तो इंडिया का like you know right wing, this whole whatever you want to call it, right wing BJP or जो भी like you know circle, many of these people are now tweeting aggressively against their own party because the party is in power. So whether it is Delhi pollution or something of that sort, or even in the US, a lot of the MAGA people are tweeting against Trump also. So वो organically thing, like when you win, you never win actually. You start like फिर उसी के अंदर में this subculture will start creating and all that. So it inherently starts breaking things down. Um, I want to also get your opinion a little bit on this idea of ये जो कम्युनिटीज़ बन रही हैं, ये जो मोबिलाइजिंग पावर हो रहा है, फ्रॉम दिस इकोसिस्टम ओनली द टर्म इन्फ्लुएंसर अरोज, एंड बहुत क्यूरियोसिटी है इस वर्ड पे फॉर सम रीज़न थियोराइज करने के लिए, राइट? और
10 साल से है, मैं तो देख रहा हूँ ये इन्फ्लुएंसर एक नया वर्ड आया मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में 2015-16 से ये लोग मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग इज डेड एंड ये वो ब्रांड कोलैब वगैरह। तुमको क्या लगता है कि इसका एक्चुअली अब तो दिस इज नॉट अ न्यू प्रोसेस, you know, like people who started out 21 22 year old, now they are in their 30s, they are still doing, you know, this जो भी उनका था get ready with me या holiday पे हम जा रहे हैं, they've done so many brand collabs. I don't know of a single brand whose branding and fortune changed because of an influencer collab, right? So why does this industry still persist? Why are brands still giving these clowns money? Like what is going on? आई थिंक उन्हें बुक के अंदर भी लिखा है फेक इन्फ्लुएंसर कैसे वर्क करते हैं और उनकी एजेंसी किस तरह से वर्क करती है, ब्रांड एजेंसीज के थ्रू कैसे करता है। तो ये बहुत ही डिटेल में आई रोट अबाउट इट, बट ऑब्वियसली कि इसका इतना कुछ इम्पैक्ट कोई इतना कुछ खास होता नहीं, बट आई थिंक इट कैन हेल्प क्रिएट अ नंबर। मतलब इम्प्रेशंस दिखा देते हैं ना लोग कि इस पर मिलियंस इम्प्रेशन आए, इस पर 10 मिलियन इम्प्रेशन आए, बट वो इम्प्रेशन के थ्रू आपके ब्रांड का कितना भला हो रहा है वो अभी तक पता नहीं। तो वो आई थिंक कई सारे ब्रांड भी इस चीज़ को लेके अवेयर हैं कि ये हो क्या रहा है। तो इनिशियली अब जैसे उन्होंने नया बीच में सिस्टम किया था कि लिंक कितनी बार ओपन हो रही है उसके हिसाब से हम पे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो भी चेंज करते रहते हैं। बट लार्जर आई हैव नो आइडिया कि इससे इतना कितना, लाइक द क्रैड इज मेकिंग दीज एजी एड्स विच आर super boring after a point of time because ये they are क्रेड का फॉर्मूला इज लाइक पिक्सार डिज्नी मूवीज। हाँ ये एक रैबिट है, एक वो उन्होंने कर दिया, बस हाँ उसी एक को चूहा घुमाते है, वो रहते हैं। चूहा नहीं बनना चाहता, हाँ वो शेफ बनना शेफ, चाहता है। हाँ बस वो ठीक है, तो ये राहुल द्रविड़ है, लेकिन ये राहुल द्रविड़ राहुल गुस्सा द्रविड़ है। शांत है तो उसको हाँ, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, गुस्सा होगा, अरे वाह। बट तो दोज एड्स आर एक्चुअली अ ग्रेट ब्रांड फॉर तन्मय भट्ट। या क्रेड एक्चुअली बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है वो पता नहीं नोबडी हमको। नोस बिकॉज ऐसा कोई खास उसका मॉडल है भी नहीं क्रेडिट का कि वो राइट, कह रहा है कि आप मेरे को अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल दो फिर मैं आपको उसमें रिवॉर्ड्स कुछ दूंगा। रिवॉर्ड्स दूंगा। तो मतलब उसका कोई उस लेवल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो राइट, लेकिन मतलब ब्रांड्स भी जो हम करते हैं, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार वहाँ जा रहा था, दैट दरियागंज में हम लोग घूम रहे थे। तो हम लोग, टिक्कू जी थे मेरे दोस्त, उनके साथ थे जो इन्फ्लुएंसर है, फूड इन्फ्लुएंसर। तो हम रास्ते में हम ब्रांड्स देख रहे थे जो ऊपर ब्रांड रखे हुए। तो एक उन्होंने कुछ तो पाइप का ब्रांड था वो, जिसको किसी ने नाम भी नहीं सुना। और उस फिनोलेक्स वगैरह ऐसा है कुछ, फिनोलेक्स, पता नहीं हाँ। कुछ तो था। और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो बॉबी बॉबी देओल। उन्होंने कहा था लॉर्ड इज़ हियर, नीचे लिख रखा है। तो उन्होंने बोला कि ये देखो, आपने इस ब्रांड का कभी नाम भी नहीं सुना होगा ज़िंदगी में कि ये पाइप बनाता है, बट इसके बाद इतना पैसा है कि बॉबी देओल को ला सकता है। फिर आगे गए तो किसी का अक्षय कुमार है किसी ब्रांड का, फिर आगे गए तो किसी का। बोलते ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके किसी ने नाम नहीं सुने हैं, बट दे हैव सो मच मनी टू पे बॉलीवुड स्टार्स। तो प्लाईवुड की कंपनियां प्लाईवुड की है। हैं, इनसे बजरी की कंपनियां, इनफैक्ट जो हमें दिखता है कि जिनके पास पैसा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो जीके में जिसके पास बहुत पैसा है, राइट, जिनके पास कोठियां हैं बहुत है, वो ऐसे बिजनेस करते हैं जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा कि इनके बिजनेस क्या है। वो जैसे पंखे का आर्मी, फिटिंग कोई एक, आर्मी का कोई टेंडर मिला हुआ है उनको, वो वहाँ पे वो करते हैं। पंखे का कुछ है, मतलब रैंडम जॉब्स हैं, रैंडम बिजनेसेस, नॉट रैंडम इन दैट सेंस, बट हैं वो। लेकिन हमने वो कभी उनके नाम वैसे नहीं सुने कि इसमें अच्छा, इसमें इतना पैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे ये जो यूपी में जो परफ्यूम बनाने का जो है ना, कन्नौज वगैरह में जो अतर, परफ्यूम, हाँ। हाँ अतर का, उसमें इतना इंसेन पैसा है कि लोगों को सरप्राइज हो जाओ कि भाई इतना इतना पैसा है इसके अंदर लोगों के पास। तो बिजनेस भी इस तरह से बहुत सारे हैं जो डिफरेंट अलग अलग तरह के हैं, जो मेन राइट, स्ट्रीम में देखते हैं सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है। तो उस हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के पास आते हैं उस तरह के। बट अभी देखो तो इन्फ्लुएंसर्स के पास आने वाले भी, मतलब इट बिकेम अ वेरी, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिंज वाले में अभी बहुत आ गया लोगों का इंटरेस्ट कि किसी क्रिंज क्रिएटर को पकड़ो और उससे कुछ करवा दो। तो ये बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके उनसे डील करवा देते हैं। तो इस तरह की भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो इन अ वे इट्स अ कोलैप्स ऑफ द स्टार, that you have created a micro celebritydom which is social media accessible. So you have all the bad aspects of celebritydom, which is your life is public, people have parasocial connections with you, they have a claim on your life and your choices,
बट यू हैव नन ऑफ द प्रोटेक्शंस दैट अ रियल स्टार हैज़, विच इज़ आपके आसपास जब आप सलमान खान बनते हो या कोई बनते हो, आपके आसपास एक पैराफर्नेलिया तैयार हो हाँ, जाता है। 50-60 लोग होते हैं हाँ, आपको आज जो सलमान खान। आपको आपकी एक टीम तैयार हो टीम जाती है, बनती है। जो यहाँ टीम यहाँ पर भी इन्फ्लुएंसर बना लेते हैं, बट इट्स नॉट द सेम थिंग एट ऑल। योर बना लेते हैं बट फिर उनका वो ही हो जाता है कि यार देखो आज मेरे को ना वैनिटी मिल गई, तो उनका कंटेंट बन जाता है उनके लिए। बट आप जिस लेवल पे आपको तो मिलनी चाहिए, और आपको कोई देखा है स्टार कोई अपनी वैनिटी आप करते होंगे, बट पहले लाइक इट वाज अ नॉर्मल थिंग कि आई एम अ स्टार तो मेरे को मिलेगी। बट यहाँ पे लोग कि आज मेरे को बिजनेस क्लास की टिकट किसी ने दी थी, आई एम सो लकी, आई एम सो लिविंग माई लकी, ड्रीम, हाँ ऐसा लिविंग चल माई रहा है। ड्रीम और ये वो। So influencers ka, I think you made this point before, and like it's something that we often talk about. This idea that you said कि like एक numbers don't really mean much actually, कि आपका मतलब अब तो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स के भी व्यूज डाउन हो रहे हैं, सो लाइक पीपल इन जनरल आर स्ट्रगलिंग, कंटेंट का एक फटीग आ गया है, एंड ऑफ लेट 5-6 महीने से 7-8 महीने से तो मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम has started resembling TikTok of 2020. काइंड बहुत ऑफ सारा स्मॉल टाउन स्मॉल कंटेंट टाउन आ गया कंटेंट है आ रहा है, एंड हाँ ऑल ऑफ हाँ। दैट. सो इन मेनी विच वेज दिस वेरी नोवू रीश अर्बन कॉस्मोपॉलिटन, ये जो एक पॉलिश था, वो कहीं ना कहीं इसमें जा रहा है. तो ये what is like the quote unquote clout that a person who has like 1 lakh or 5 lakh followers, clout है क्या उनके पास नहीं, ज़्यादा रियल नंबर टर्म्स के में? अलावा उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। एक मैं बुक में लिखा है डेथ ऑफ फॉलोवर, एक पैट्रियन का जो फाउंडर है, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि उसका इसमें पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट उसकी बात ठीक है कि अभी जो फॉलोवर का उतना अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर आपके 1 मिलियन भी हैं तो उसमें से बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो है वो इंगेज कर रहा है आपके साथ। कई बार तो आप देखते हो किसी के 10-12 लाख फॉलोअर हैं और कमेंट आ रहे हैं उसके पास 20-25-30। इसका मतलब वो फॉलोअर डेड फॉलोअर एज इन दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड Right. इन व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। तो वो वाला भी एस्पेक्ट है। तो फॉलोअर काउंट या नंबर से तो कुछ वो नहीं होता। फॉलोअर फॉलो क्यों करते हैं? लाइक व्हाई आर दे फॉलोइंग? लाइक आई हैव सीन दिस. अब मेरा लेटेस्ट हैबिट बन गया है कि पिछले 1-2 साल से कोई मुझे नया पर्सन मिलता है ना, मैं बोलता हूँ, अगर थोड़ा हम फ्रेंडली है, कि तुम मेरे को दिखाओ कि तुम फॉलो किसको करते हो. लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेदर यू फॉलो वीरदास और वट, आई एम इंटरेस्टेड. वो पता है क्या है, जैसे अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, तो वो बोले ग्रेटर नोएडा इवेंट्स, ग्रेटर नोएडा का कोई वेन्यू होगा, वहाँ के रेस्टोरेंट जो है, तो उसके ऐसे 500 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से 50 लोकल वेन्यू इवेंट वगैरह है. सो फॉर देम इट्स अ वे ऑफ कैचिंग अप, लाइक हाँ, कि क्या इवेंट आ रहा है. इसमें एक बहुत ही सेल्फिश मूव है फॉलो करना। इट्स नॉट वो वाला मूव नहीं है कि आपके प्रति वो कोई सबमिसिव है आपके Right. कंटेंट को लेके। फॉलोइंग इज अ सेल्फिश मूव, यू जस्ट वांट टू सी कि क्या कर रहा है यू। समटाइम इट इज़ जस्ट रैंडम, इट इज़ नॉट लाइक फॉलोइंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फैन फॉलोइंग, यू नो। Right. फैंस आर वेरी डिफरेंट, वो बहुत कम ही होते हैं आपके जो आपको सही में पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट है। बट लोग जस्ट फॉलो कर लेते हैं, they don't even know what you are doing. Right. I mean, it Right. doesn't mean that Right. they are committed to you. They know you exist. हाँ, exist, and sometime they will watch. Right. But then there are people who are so deep into what I do. Right. वो एक एक डिटेल बता देंगे, आपका चार्ट भी उखाड़ के रख देंगे कि आपने 2020 में इस तरह के स्टैंड लेते थे, फिर आपका ये परिवर्तन हुआ, ये हुआ। तो वो भी एक कैटेगरी है। Right. बट आई थिंक मोस्ट जो कैटेगरी है, इट इज़ जस्ट यू नो, इसमें मैंने लिखा है फॉलोइंग का लोगों को ये लगता है कि 10, अगर मेरे 1 लाख फॉलोअर हैं तो वो सब मुझे देख रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे स्टूपिड बात कुछ नहीं हो सकती। Right. आपके 1 लाख जो फॉलोअर हैं वो 10 लाख और को भी देख रहे हैं कलेक्टिवली। Right. आप उनमें से एक फ्लीटिंग ग्लांस हो कि आपको भी देख रहे हैं। सो देयर शुडंट बी दैट narcissist or egoistic idea in that sense कि I am somebody whom they are watching and what I create matters. I mean, उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर वो नहीं होगा तो आप क्रिएट नहीं करोगे, तो वो भी रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतना कोई डेडिकेटेडली आपके साथ कोई है नहीं। दे आर जस्ट पासिंग बाय, द ऑडियंस इज जस्ट Right. मूविंग, passing by, and they are also sadly aging, which is very important. Yes. With aging, their content preference Changes, with yeah. aging, their idea of the world, idea of what is entertaining, what is influencing, what is
kind of politics they want to follow, everything changed. So a influencer or a creator have to also deal with the aging of their audience, which is very sad. That is an excellent point. Like, I was going to ask something else, but you've brought this point. It's something that I actually think about a lot in terms of what has happened. I think a lot of people who've just aged out in their late 20s, early 30s, or mid 30s, 5-6 साल पहले तक इनमें एक विगर था, एक इनको स्टैंड लेना होता था, एक इनकी क्यूरियोसिटी थी. अब इनके बच्चे हो गए हैं, किड्स आर एट अ सर्टेन स्टेज, फैमिली, इन्वेस्टमेंट्स, they are looking for different things. They are not going back to TV and आस्था चैनल और whatever. वो अभी भी सोशल मीडिया में है, बट उनका प्रायोरिटी थोड़ा बदल गया है, राइट? सो देर इज a certain level of comfort, but there is also a certain level of a crisis कि this cohort of people does not know how to age properly. I think हम जिस जनरेशन से आते हैं, late 30s and early 40s, this is a big crisis for all of us that there is no template for us aging. हमारे पेरेंट्स का जो एजिंग का बहुत क्लियर टेम्पलेट था कि आप एक लेवल पे चले जाओ, अंकल आंटी बन जाओ, थोड़ा बाबा जी वगैरह कुछ देख लो, थोड़ा कीर्तन में बच्चों जाओ को कीर्तन वगैरह कर लो. अभी आई एम सीइंग 40-year-olds स्टिल गोइंग, एपी डिल्लॉन पे पार्टी कर रहे हैं, जेनजी की एक्टिंग कर रहे हैं. कई Gen Z की acting इन्फ्लुएंसर जो कर रहे हैं. 40 साल के हैं, मैंने एक मीम भी डाला था, एक इन्फ्लुएंसर, दे आर प्रिटेंडिंग दे आर जेनजी एंड दे आर 40. हाँ, इनका यूथ खत्म ही नहीं हो रहा है. हाँ. और इनकी वो पार्टी खत्म ही नहीं हो रही. कितनी बार आप हुक्का चला लोगे, कितनी बार आप दारुएं पी लोगे, मतलब आप कर क्या रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन? बिकॉज वो एजिंग के साथ दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ एजिंग, बिकॉज फॉर देम दैट यूथफुलनेस इज द ब्रांड विच शुड कनेक्ट विद मोर पीपल. जैसे मैंने बोला, यूथ का सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक नॉइज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. दे आर सम पीपल हु इन्फ्लुएंस पीपल, और बहुत जगह वो आपका कंटेंट एम्पलीफाई करते हैं, तो वो यूथ ही होते हैं. तो हर किसी को जेनजी वाली ऑडियंस चाहिए. तो अब वो लगता है उनको कि अगर हमारी एजिंग हो रही है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, देन आई लूज आउट दैट ऑडियंस विच इज़ द कोर ऑफ द इंटरनेट ऑडियंस. सो दे देन जस्ट ट्राई टू डू, इट्स लाइक रजनीकांत इज़ वेयरिंग विग, VFX से अपने आप को जवान दिखा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बट रजनीकांत जब पब्लिक में आता है विग नहीं पहनता. वो नहीं पहनता. बट वो इनका, हाँ, बट इनका ये है, दे आर ऑलवेज इन द विग, दे आर ऑलवेज इन द that character of youthfulness or something happening. But that is also, I mean, if you meet them in the personal life, then you'll realize they are very anxious. It is very interesting. They are very पोस्टफुल सोशल मीडिया पे. आज मैंने ये कर दिया, आज मेरा ये हो गया. तो मेरा एक जान पहचान का बंदा था, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर अब बन गया है. इनिशियली जब वो उतने ज़्यादा फॉलोअर उसके नहीं थे, तो उससे मेरी बातचीत और होती थी काफ़ी टाइम पे, बट अभी बिकेम वेरी बिग. तो वो अपनी पोस्ट ऐसे डालता है कि ही इज़ इन्जॉइंग एवरी डे, तो सारी पोस्ट. फिर मैंने कुछ इसकी पर्सनल जो स्टोरी थी क्लोज फ्रेंड वाली, तो वहाँ पे मैंने देखा इसने कहा कि आई एम नॉट एन्जॉइंग एनीथिंग, लाइक आई कांट फील हैप्पीनेस एट ऑल. बट पब्लिक पोस्ट पे इज सेइंग दैट एवरी डे इज़ एन इवेंट. सो देन आई रियलाइज दैट जितना आप बोस्ट कर रहे हो चीज़ों को, रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट होती है. इसलिए मैंने लव का बोला, लव इज़ नॉट रियली इंस्टाग्रामेबल. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद समथिंग, इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू डोंट वांट टू शो इट टू दी फॉर द पब्लिक कंजम्पशन. तो दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी. तो माई पॉइंट इज़ दैट, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर दिखा रहे हो तो आप लव नहीं कर. दैट्स नॉट अ सिंपल पॉइंट आई एम मेकिंग, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि जो चीज़ आप हमेशा देखते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, रियलिटी जो मैंने देखी है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. सो दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल इन दैट सेंस कि मुझे पता है कि इतनी भी हैपनिंग और इतनी भी कोई वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं थोड़ा कूद फांद करके कहीं आगे बढ़ जाऊँ. तो which how do you as a content creator yourself, not as a writer who's writing, you are creating a lot of interesting content, and I think one of the reasons why your work got noticed so sharply is it was stylistically very different. yeah. तो वो शुरू के वो जो सौभाग्य वीडियोस थे, कैमल के वीडियोस थे वगैरह, जो बहुत वायरल हुए थे एक्चुअली एक टाइम पे. And then there's a separate fandom only which exists for those videos, and there's a separate fandom जो अभी भी तुम्हारे वो midnight edits का fan है. Like you would take all these different
Bollywood and like world cinema kind of intersections, and you would do this. वो एक अलग fandom है. And then you started doing these review videos which had a separate fandom, and you have a podcast fandom. Some of these overlap, but these can also be separate. So जब तुम ऐसे देखते हो कि let's say, I'll just take a few names for instance, like Samdesh Bhatia is also like a content creator. You've written about him on the book also and everything. Now he is a also an interviewer who has a very unique style of thing, but he's very big. He's interviewing members of parliament and going around, has probably like a huge team size of a small office or whatever, right? So as a content creator in real terms, how do you feel ke, the acceptance and the audience of your work and the depth with which people are, let's say, following you? I don't think they follow, like, let's say, Beer Biceps. For them, Beer Biceps is giving content. Beer Biceps का इतना rabid fandom नहीं है, right? But then some of these people like Samdesh and all, like, how do you handle the FOMO? How do you feel like कि ये जो तुमने बोला कि अभी कि अंदर से कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, how do you maintain the balance as a content creator? One reason is that I'm like I love to create, so I'm just creating. I don't have any FOMO as such. Like I don't think anything which I'm missing in life, or there is a space which is waiting for me which is better than Right. this space. So that is very unusual. I'm We know people extremely- who are like, constantly इसका No, video no, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया. because I can do that thing, but for that I have to change my style. So if I'm ready to compromise on that, then I should. अगर मैं compromise कर लूँ और मेरे पास नहीं आ रहा, then I should really feel bad. But I'm not doing those compromises which align to my personal philosophy, which is I generally don't try to bring any big guest. कि Right. बहुत ही रेयरली विल सी समबडी हु इज़ वेरी बिग, और जिसके नाम से बहुत व्यू आएंगे, उस गेस्ट के नाम से बहुत व्यू आएंगे. मेरे ज़्यादातर गेस्ट उतने मेन स्ट्रीम में उतने पॉपुलर भी नहीं है मोस्टली, बट तो आइडिया इज़ टू गेट समथिंग फ्रॉम दैट. तो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है कि लाइक आप पॉपुलर किसी को बुला के फिर उसके साथ रह के उससे व्यू लाने की बजाय आप खुद कुछ करके देन यू through that power of that conversation, you get something. Then this, which is completely my philosophy. So if I'm choosing this philosophy, I can't expect something in millions. Right. That then I'll be very foolish to think. So like if I have to play that game, then I have to change my style. But the question is, are you ready to change it? I don't see any reason to change it. Maybe I can earn obviously good money through that, but that hasn't been my criteria. Obviously now I want to earn money. I'm aging and everything, but initially, like, my criteria of life was completely different. My aims were very different. I wanted to make films. I was into art field, and yeah, these were my primary things. And I struggled with employment for many years, and finally I got some kind of an audience. 2020 में, उससे पहले I was struggling for like maybe 8-9 years without any work, to be honest. So finally I got the audience, I got the work, and it's such an interesting thing that whatever I'm saying or whatever I'm doing, there is such a, not big in terms of those numbers, but there is a very good audience for that. Yeah. So I feel very, to be honest, very lucky. It's just that the issue is the money issue, but I think for money I have to be little, I mean, You need brand deals. brand deals. Brands, come here. Achhi No, but conversation. I get brand. It's not like I don't get brand, but I never Acha. done any brands for Okay. like I get on because many Insta videos went viral in the past, and for the YouTube, for Substack, I get a lot of brand deals. But personally, I haven't done any brand deal till now, so I'm just surviving through membership, Patreon, Right. and which is not much obviously, but this is the path I choose. So I chose, so I can't complain at the end. Right. And one thing is also there that I really treat my audience like, you can accuse of my content good or bad, but I really treat my audience as very intelligent Right. people, which is a very bad business move. You have Because then you can't manipulate your audience, Yeah. or You can't like squeeze them and say that pay और पैसा दो, और or पैसा they दो. and ये something मेरा like that. merchandise है, ये And मेरा like ये then है. you all are also, even in that intellectual space, I'm not making something which is very Right. simplistic. For example, in this episode we will understand caste privilege.
I'm not doing a primal on that. If you listen to my episode on the cast, they directly go from the bang, and they will expect you as a listener Right. to be little aware about these issues, because they are not going to teach you from the basic, or I'm not going to tell you कि दलितों पे discrimination होता है नहीं होता है, I बहुजनों think के साथ that क्या is होता है. a So that is people the who do choice I that made. is a who do explainer हाँ. content. Their audience is also a very young and b very reactionary, because you're asking for very explainer concepts. So जो अगला भी आ रहा है वो बहुत basic चीज़ों पे उसका objection होगा. When you do a like सीधा advanced level conversation, या तो उसको समझेगा ही नहीं, या this is an audience which already understands the nuance. So I think that is a very interesting kind of a long term. When you do it, it curates a nice space. But I also want to kind of ask, because going back to what you were saying earlier, कि um, it's very difficult कि आपके अगर like 1 lakh followers हैं, उसमें से आपके followers और fans अलग है, right? तो fandom जो तैयार होता है, जो एक थोड़ा सा which also has a little bit of a fan and fanaticism is kind of very etymologically also linked, right? So वो जो fanaticism है, I feel sociologically अभी भी बहुत core चीज़ों से आता है. Like you have a whole chapter on caste, right? कि caste को रील्स एरा में एक, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव हैपेंड इज, क्योंकि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन इंग्लिश स्पीकिंग सर्कल्स, दिस कॉन्वर्सेशन वाज कास्ट इज समथिंग दैट हैपेंस इन विलेजेस. कास्ट तो सोफिस्टिकेटेड ये जगह में इंग्लिश स्पीकिंग स्पेस में है ही नहीं. एंड द रील्स एंड द सोशल मीडिया हैज जस्ट completely bust that narrative, so much so that entire identity becomes about that very basic culture. And you're talking about even people like Elvish Yadav and like these basically OBC communities, जिनके पास neither do they have like the historical privilege of Savarna castes or the sophistication which comes with it, जो elite intergenerationally literate है, neither do they have the pride, resistance and dignity of let's say the Ambedkarite scheduled caste Buddhist movement or whatever जो भी है, या tribal movements जो हुए हैं, ये बीच में कहीं पर रह गए हैं. So their entire like especially in North India में this is very, you know, चौधराई दिखानी है, you know, that kind of a thing. So you mention Gujars, you mention Yadavs and Yaduvanshi castes. So do you see, and like I'm sure you've spoken a lot about this in Elvish and all that, and many of your English speaking sophisticated audiences don't even know how big those fandoms are. yeah. कि मतलब वो मैसिव है एक तरीके से. मैं अभी गुड़गांव में गया था एक क्लब में, तो बहुत ही लाइक वो कमीलियास के सामने का क्लब है, तो उन्हीं अमीर लोगों का क्लब है बहुत ही ज़्यादा. तो वहीं पे मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा वेयर डू यू लिव, मैंने कहा आई लिव इन नोएडा. बोला ओ योगी. Then I said, अच्छा you live in गुड़गांव, ओ हुड्डा. तो मैंने व्हाट इज़ द डिफरेंस यार, दिस इज़ नॉट सम. बोला नो नो द गुड़गांव इज़ मच बेटर. मैंने कहा अच्छा, आई ऑलवेज थिंक ऑफ गुड़गांव एज एलविश यादव की भूमि. बोला हु इज़ एलविश यादव. मैंने कहा बस तुम्हें एलविश तुम्हें यादव Elvish नहीं नहीं पता, पता. ये एलविश की भूमि है मेरे लिए तो. और जब एलविश वहाँ पे गया था बिग बॉस में, तो हर गली नुक्कड़ पे उसकी ग्राफिटी और पोस्टर थे, तो पूरा गुड़गांव एलविश का की उसमें थी. तो एलविश का मतलब वो रीजन से वो आता है. और वैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, एलविश तो एक इन्फ्लुएंसर है जो आते हैं, और उनकी कास्ट का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे गुज्जर हो गए, जाट हो गए, यादव हो गए, तो वो एनसीआर में आई थिंक वो कुछ अलग ही स्टेरॉइड पे चल रहा है. जो कि मैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ कि बहुत सारे कल्ट हैं, पेप्सू का भी एक कल्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चलता है. बट अगर आप डे टू डे एनसीआर को देखोगे तो आपको लगे इतनी ज़्यादा कास्ट वाली स्पेस है. लाइक जस्ट रोड पे जाओ, आपको ज़्यादा इतना डीप में मत जाओ, आप रोड पे जाओ. अभी मैं जिस कैब से आया हूँ, उन्होंने बीच में एक खूंटा टांग रखा था और ब्राह्मण ब्राह्मण वो हिलता रहता है चलते थे ब्राह्मण. मैं बस ये देख, मैं कहा हिप्नोटाइज हो जाऊंगा मैं, वो ऐसे से चल रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं हिप्नोटाइज होके कुछ ब्राह्मण बन दिस जाऊंगा. लेवल ऑफ कास्ट बट वो हर जगह है वो, हाँ. मतलब ऑफलाइन यू कैन सी इट एवरीवेयर राइट नाउ. आई थिंक NCR especially इट्स में, मच मोर देन हाउ इट वाज मेनी इयर्स बैक Do you थ्रू see द this इंटरनेट. as a form of violence or assertion? Or is that binary not a good I one? think दोनों ही नहीं है. It's just that people are very desperate to cling to certain kind of one level up from somebody. वो इंडिया का सारा गेम वही है. तो अब ब्राह्मण तो कर ही रहे हैं, ठीक है, अब गुज्जर भी कर ही रहे हैं, ठीक है, यादव जाट भी कर ही रहे हैं,
देयर मैनी कास्ट लाइक सैनी सैनी साहब शुरू हो गया, अभी सैनी साहब हो गया, तो मैनी, तो ऐसी बहुत सारे कास्ट जिनके बारे में आप बहुत कम सुनते हो असर्शन को लेके, तो उनका भी इसके अंदर हो गया। और हर मैंने कास्ट आई कायस्थ थिंक, समाज का देखना शुरू किया, हाँ मतलब कायस्थ गुप्ता, अदरवाइज गुप्ता नॉट साहब वेरी। भी आ गया हाँ अभी, क्या? गुप्ता साहब। गुप्ता साहब। तो सबका वो है कि हर कास्ट का है कि मैं एक लेवल ऊपर अपने आप को दिखा दूं, एंड इट्स लाइक राइट। जैसे बाहर कोई लुई विटॉन फ्लॉन्ट कर रहा है, यहाँ पे अब फ्लॉन्ट करने के लिए मतलब लोगों के पास है कि मेरी कास्ट है और मेरी कास्ट सबसे बड़ी है। और वो क्यों सबसे बड़ी है? क्योंकि इंटरनेट पे उसके रील्स और इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि अब उनके दिमाग में आ गए कि हाँ मैं इस कुल से आता हूँ। तो वो आई थिंक इंटरनेट के बाद ये वाला एस्पेक्ट जो है हर कास्ट में प्राइड लेने का, वो बहुत बहुत ऊपर बढ़ गया। इनफैक्ट यूजीसी पे मैं एक बहुत पॉडकास्ट देख रहा था, शायद जाट और एक गुजर चलाते हैं, तो वो जाट गुजर इशू पे ही बात करते हैं ज़्यादातर। तो कहता है ये कहा को यूजीसी, बोलता हाँ कुछ तो आया हुआ है। अरे हम यूजी से अपने को क्या लेना, बोले क्यों? तो बोलता हमें तो अच्छा लगो कोई हमें गुजर बोले तो, तो कोई जाट बोलेगा तो हमें तो हम थोड़ी कैस करेंगे उन पे, हमें तो अच्छा लगो कोई जाट गुजर बोले हमें। तो आप आई मीन आप कैसे समझाओ आप इन चीज़ों को, लाइक दिस इज द डिस्कोर्स। वो कह रहे हैं कि हम तो प्राउड हैं इस चीज़ पे, हमें मतलब आप हमारे लिए इतना क्या है। एक्सक्लूड हो चुके हो कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग प्राइड बिकॉज आपने अपनी एज अ कम्युनिटी एस्पिरेशन ही बहुत छोटी कर ली, छोटी सो कर देन रखी है। कास्ट इज द ओनली असर्शन लेफ्ट इन बट दैट। मुझे लगता है जितने भी कास्ट असर्शन वाले मोड पे उनका फ्यूचर आई थिंक 20-30 साल बाद इज नॉट ग्रेट, दैट्स व्हाट आई थिंक। That's what I was going to ask you next. Like, where do you think this goes into? Because it eventually becomes politically mobilized. It will have to be, because जहाँ आप कास्ट और असर्शन और पब्लिक स्पेस में, और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया भी एक तरीके का पब्लिक स्पेस ही है, जहाँ यू स्टार्ट पुटिंग कास्ट आउट इन अ पब्लिक स्पेस, इट इवेंचुअली विल गो इन टू अ पोलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ सॉर्ट्स. सो व्हाट डू यू सी दैट? क्योंकि वहाँ पर पोलिटिकल कॉन्टेस्ट बढ़ जाएगा. मोबिलाइजेशन हो रहा है, बट आई थिंक पर्सनल लेवल पे इसका कुछ ज़्यादा स्कोप है नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर असर्शन के अलावा दे आर नॉट डूइंग कि भाई हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कितना है पुलिस में, आईएएस में, आई, जो क्वेश्चन जरूरी है कि पावर सेंटर में आपका कितना रिप्रेजेंटेशन है राइट. पॉलिटिकल, वो पूछ ही नहीं रहे। वो एक रैंडम प्राइड जिसका कोई, देर इज़ नो एंड गोल टू दैट, देर इज़ नो राइट. एजेंडा टू दैट कि क्या करना है। आप अपनी कम्युनिटी को ही प्रॉस्पर हमने कर लो। दिखा दिया, हाँ, किसको दिखाया पता नहीं. आप हाँ. अपनी कम्युनिटी को ही प्रॉस्पर नहीं कर रहे हो, आप जस्ट एक रैंडम प्राइड ले रहे हो, क्या कर रहे हो उसका, इट्स अ कम्प्लीटली माइंडलेस थिंग। लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन ऑफ दी की एस्पेक्ट इंडिया के अंदर जो आपको पॉवर्टी से बाहर निकाल सकती है वो है कंपटीशन एग्ज़ाम। ठीक है, तो राजस्थान में अगर आप देखो तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम को सीरियसली लिया वो प्रॉस्पर कर रही हैं हर जगह पे। राइट. तो उसमें राजस्थान दलित इज अ बहुत हैं। हब. राजस्थान इज अ हब राजस्थान एक्चुअली. कंपटीशन एग्ज़ाम का हब है, उसमें राइट. दलित हैं, मेघवाल जो हैं, जो मेरी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है राइट. कंपटीशन राइट. एग्ज़ाम को। जाटों ने बहुत सीरियसली लिया है, बट बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि उन्होंने उतना उसको लिया नहीं, वो झूठी उनके पास पुरानी रिसोर्सेज प्राइड में ज्यादा रहे। होंगे लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया. उनके पास है भी नहीं। हर कम्युनिटी में कह रहा हूँ, जैसे कोई भी राजपूत कम्युनिटी भी है तो उसके अंदर भी एक लिमिटेड लोगों के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, बट एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी के अंदर जिनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज हैं नहीं। अच्छा. तो वो भी है। तो मतलब सारी ऑब्वियसली सारे पावरफुल उसमें है नहीं, लेकिन जो सीरियस लेने वाली कम्युनिटी और कम्युनिटी का कल्चर भी उसमें वो है कि कंपटीशन एग्ज़ाम को कौन सीरियसली ले रहा है, वहाँ से वो चीज़ों को उन्होंने बदली है अपनी अपनी राइट. सिचुएशन। बहुत सारी एसटी कम्युनिटी ने बदली, बहुत सारी दलित कम्युनिटी ने बदली है, राजस्थान जैसे मीना समाज है. मीना समाज ने बदली है, बट चलो उस पर भी एक उनका एक एसटी के अंदर एक इशू है मीना इशू है. के साथ कि वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हें ज़्यादा मिला है। वो एक हम्म. राजस्थानी पॉलिटिक्स है लोकल, हम्म. बट ऑब्वियसली उन्होंने वो बदला है। बट ओबीसी की बहुत सारी जातियां वो आगे निकली हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के थ्रू। तो एट द एंड जो पावर का जो मीडियम है इंडिया में वो अभी भी बहुत ही सैड एंड मीडियम है। वो सैड इज़ लाइक आपको किसी गंदे से कमरे में बैठ के याद करना है, रटना है, ये वाला नहीं है। हाँ भाई आजा भिड़ ले हमसे, इससे कोई पावर तुम्हें मिलेगी नहीं एट द एंड। एंड द सैड पार्ट और द फनी पार्ट और द ट्रेजिक पार्ट, या इसमें पैथोस जो है एक्चुअली इज कि सो मेनी ऑफ दिस कम्युनिटीज आर स्टक यहाँ पर कि आजा भिड़ले देख लांगे वगैरह फलाना गुंडा टिमकाना. कर दिया। बट जो एक्चुअल कल्चरल पावर जिसके पास है वो
लिटरेरी फेस्टिवल में जा रहे हैं, बियानेले में जा रहे हैं, मैं अभी रिसेंटली एक पब लेक्चर में गया था। तो उनका जो कल्चरल फॉर्मेशन है, ठीक है, वहाँ आपके पास उनके पास सबसे पैसा कम होगा, लेकिन एक्सेस आपसे 100 गुना ज़्यादा होगी, राइट? आप थार में घूम लोगे, गेड़ी लगा लोगे, यही आपका फ्लेक्स है, बट एक्चुअली आप उन स्पेसेस में घुस ही नहीं पाओगे। घुस नहीं पाओगे। थार को इतनी प्राइम गाड़ी भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया। ऐसे तो मत बोलो यार, मतलब उसका कल्ट है एक, कल्ट तो है, बट इट्स नॉट लाइक डिफेंडर के एम्बिशन हो, फॉर्च्यूनर के भी रख लो तो वो समझ में आता आई है। थिंक थार इज द एनफील्ड ऑफ बुलेट ऑफ 15 ईयर्स हाँ ago. हाँ, काइंड ऑफ। 2010 में बुलेट का सबको बुलेट चलानी थी, एंड बुलेट वेंट फ्रॉम अ निश बाइक टू अ मास बाइक टू वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग बाइक। वही थार का ही एक कहीं ट्रांसफर, वही तब का अभी थार खरीद रहा है। इट्स अ वेरी interesting shift. But I also kind of, since you talked a little bit about competitive exams, I also, like, you in your book, I think I've seen many of your reviewers or people who comment on your book miss this very interesting section of it where you're talking about these huge audiences जो online teachers create कर रहे हैं, right? मतलब एक तरीके से वो भी content creator ही है, वो, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर है। वो 30 सेकंड की रील नहीं बना रहा है या बना रही है, वो एक घंटे 2 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, और हर वीक 2 लेक्चर दे रहे हैं, 3 लेक्चर दे रहे हैं, पूरा का पूरा आपको प्रिपरेशन ऑनलाइन करा के दे रहा है। तो जो उसका ऑडियंस है वो इन टीचर्स के साथ 6 महीने 8 महीने जुड़ा हुआ है, और वो टीचर उसकी ज़िंदगी में है, वो मतलब दिन रात घंटों हंड्रेड्स ऑफ आवर्स उनका कंटेंट कंज्यूम किया है। तो दे हैव एग्रीगेटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ reach and clout and actual stardom, right? And you wrote about, I think, some of these people, Khan sir जैसे, right? और वो तो अभी आंदोलन वगैरह भी करने लग गए हैं and everything. So how do you see them as a content creator, not as a teacher, as a content creator? टीचिंग तो उनका एक एस्पेक्ट है, बट सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ जो आप काम कर रहे हो सिर्फ वही कर रहे हो तो आप उतने पॉपुलर नहीं होगे। यू हैव टू ऐड समथिंग टू दैट। सो टीचिंग देन बिकेम अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन की, बिकॉज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई कोविड के बाद में, टीचिंग भी बहुत ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन आप करना है, तो जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा देन परफॉर्मेंस बिगिंस। इट कांट बी अ बोरिंग यूजुअल थिंग। तो बहुत सारे टीचर हैं, वो आपने देखा होगा सिर्फ टीचिंग नहीं करते, वो दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ थेरेपिस्ट, दे ऑल्सो मेल, अगर स्टूडेंट के हिसाब से दे एक्ट लाइक अ यंगर ब्रदर, जिसको ज़्यादा पता है, वो स्पिरिचुअल गुरु भी है आपका। उसके अंदर सब एस्पेक्ट है जो सोसाइटी में बिखरी हुए एस्पेक्ट है ना, कि आपका गुरु कोई और है, थेरेपिस्ट कोई और है, टीचर कोई और है, ज्ञान जो देने वाला, वो एग्रीगेट करके उसने एक पर्सोना बनाया जिसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। और वो फनी भी है, स्टोरी टेलर भी है, वो आपके लव के बारे में बात करेगा, वो ये भी बात करेगा ब्रेकअप होने पे क्या होता है, इन सब के वजह से। ये अपने जैसे ओजा सर हैं, तो वो तो बहुत ही रैंडम एडवाइस देते हैं कि यार रोटी जो होती है ना 2 दिन बाद खाओ गुरु तो मज़ा आएगा, या फिर यार भगत सिंह बनो, क्या बनोगे, आइए कुछ तगड़ा करो गुरु। तो फिर या फिर अपने टाइम की बात बताते, यार मैं तो देखो कोई मारता था ना तो उसको छोड़ता नहीं था। बट इट्स वेरी रैंडम एनेक्डोट्स, बट इट वर्क्स बिकॉज देन एक इनिशियल इमेज थी ना, टीचर हैज़ टू बी सुपर स्ट्रिक्ट, उसका एक ऑरा है, वो क्या सोचता है आपको नहीं बताएगा, वो आएगा चौक पे कच 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 करेगा, और पीछे से कोई करे चौक तोड़ के उसके सर पे मारेगा। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, ही इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको मारेगा। मारने का एस्पेक्ट बहुत टीचिंग से जुड़ा हुआ था एक टाइम पे इंडिया में, अभी भी होगा बहुत सारी जगहों पे। तो वो आपका दोस्त किसी तरह से नहीं है, आप उससे अपने दिल की बात, घर की प्रॉब्लम, लड़का लड़की के इश्यूज़ जो हैं, वो आप प्रेम के जो इश्यूज़ हैं उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। बट ये जो एक नया टीचर आया जो कंटेंट क्रिएशन में, ही इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ योर लाइक, उसके पास सारे आंसर हैं आपके पास उसको देने के लिए। तो उन्होंने अपना पर्सोना इसी तरह से बनाया। विकास दिव्य कृति ने भी अपने लेक्चर शुरू किए हैं बहुत सारे, वो दुनिया के हर एस्पेक्ट पे कोई ना कोई उनके इंटरेस्टिंग लेक्चर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने वो शुरू किया। आउटसाइड ऑफ हिज लेक्चर्स जो उसकी सोशल कमेंट्री होती है, सोशल कमेंट्री भी है। आई फर्स्ट नोटिस्ड क्योंकि ऐसे सम अम्बेडकराइट हैंडल्स वर retweeting snippets of his lecture where he's talking about caste. Yeah. Or I don't think he's from the community, he's a Savarna person.
but the way he's talking about Baba Saheb and the way he's talking, मतलब आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि वो एक्चुअली सिलेबस नहीं पढ़ा रहा आपको. वो बहन जी के बारे में बात कर रहा है हाँ, कि वो बहन जी कॉन्टेक्स्ट दे का रहा है आपको. कॉन्टेक्स्ट दे रहा है. सो तो आई वो सिलेबस के बाहर है, जो इंडिया इंडिया जैसी जगहों पे एक फ्रेंडलीनेस ऑफ द टीचर हुआ नहीं था, वो इंटरनेट के थ्रू आई थिंक इट केम इंटरेस्टिंग. that whole friendly, but this is limited to male teacher. Female teacher पे there is a lot of male gaze to that. राइट. तो वहाँ पे ग्लैमर के लिए वो है, या फिर वो जो टीचर पढ़ाती है तो उसको करते कि मैम आपको प्रपोज करना है, मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, फिर वो मैम उस पर कुछ रिप्लाई करती हैं, तो वो भी एक जॉनरा है कि मैम. फिर वो आप शॉर्ट्स में जाओगे कि इंडिया की 5 सबसे खूबसूरत और टीचर, और ये सारे उन बेसिक पे मिलियन क्रीपीनेस आ व्यूज. गया हाँ, उसमें. मतलब जो एक मेल गेज के थ्रू वो चीज़ों को देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक वो बड़ा भाई है, स्पिरिचुअल गुरु है, टीचर है. फीमेल में सिर्फ वो ऑब्जेक्टिफिकेशन है लुक्स का, राइट. और फिर उसके अंदर भी काफ़ी कई राइट. टीचर हैं वो भी प्ले अराउंड भी करते हैं इसके थ्रू, बट कई टीचर हैं जिन्होंने उसके बारे में बोला है कि वी डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग. तो उसमें भी एक क्लियर जेंडर का भी आई थिंक देयर इज एन एस्पेक्ट टू दैट. Right. टीचिंग वाले के अंदर बहुत ही क्लियर कि व्हाट आर पीपल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर टीचर, व्हिच इज आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग I'm ऑनलाइन. glad that you're saying that because one of the criticisms which often kind of gets put to, commentators like us, which is कि these are older male people वगैरह, कि ये अंकल है, अंकल का टेक है और whatever and everything. There is a very gendered aspect to the internet. When you write about, all of these different uh, historical, cultural, contemporary tied together, how do you deal with that aspect of it? कि अगर कोई तुम्हें बोले कि लाइक ये तो बहुत ही gendered है and everything, how do you see, and like what is your equation with, let's say, you have, I know for a fact you have a lot, you have a very diverse audience. It's not like only men follow your content. A lot of women who have like very active careers and like doing great things also follow your content a lot. So how do you maintain that? Like what is it, do you do something differently? नो, बट मतलब आई कैन एक्सेप्ट इट टू बी हाँ, ऑनेस्ट, क्योंकि बिकॉज एक इमेज है ना कि मेल पॉडकास्टर्स एंड तो वो इमेज में आई थिंक दैट कैन, आई मीन 100% इट कैन बी ट्रू दैट जो वुमेन के जो इशू है उनका एक्सपीरियंस है वो पर्सनली हो सकता है, या तो मुझे समझ ना आए या फिर मैं कोशिश करूं समझने की और उतनी अच्छी तरह से समझ ना पाऊं. तो दोनों एस्पेक्ट हैं. तो इफ समबडी टेल्स मी दैट दिस एनालिसिस इज अ कैन इज थ्रू दैट मेल लेंस, मेल बाइस, then I don't have any answer for that. Maybe I can think about it more, but that can be totally true because Right. मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो उसी तरह से shaped up है, and I feel Right. like I am born in that Right. male body, so Right. it is 100% possible कि मेरी बहुत सारी analysis में it can be a very male thing, but then how can I think from the female point of view? They have to present their thing. I can amplify it personally, but I can only say things which Fair enough. I know well. The other element जो just a little bit ago we were talking about, ये caste based mobilizations जो हो रहे हैं, and we were like you were saying कि इसका future तुम्हें अच्छा नहीं दिख रहा है and everything. One of the patterns which have also become visible, and you've written about this in your book, is this absolute, I don't know what the word for it is, these irrational cults which just emerge from nowhere. You've written about the SSR thing, but like in the US there's a QAnon, and मतलब इस और QAnon जैसी चीज़, SSR जैसी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है. It just splinters and just devolves somewhere. But अचानक से एक तूफान जैसा आता है, and ऐसा लगता है कि all sorts of mentally unwell people have come together and are finding a strange sort of community which makes no sense to anybody who's outside that little bubble. So much so that I remember जब SSR, Sushant Singh Rajput, when the thing had exploded, I was looking out for articles to read on it. Nobody had a decent article to write because they didn't even know who to speak to. They just were seeing these huge Twitter हाँ, storms. उनको लगा प्रोपोगेंडा है ये, बट ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. It was a genuine engagement. जेन्युइन कल्टिशनेस के अंदर जाने का जो ह्यूमन बीइंग का पर्सनैलिटी ट्रेट है, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू दैट. अभी कल ही मेरे पास एक मेंबर का बहुत बड़ा मैसेज आया
विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसने कहा कि मैं उड़ीसा से हूँ भैया और मैं बेरोज़गार हूँ, तो आपकी मेंबरशिप आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा, इसी महीने मैंने लिया है। तो मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी बात है, आपने बेरोज़गार होते हुए मेरी मेंबरशिप ली। तो फिर उसने बोला कि मेरे साथ एक इश्यू हो गया था कि मैं जब स्टूडेंट, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, बट उस टाइम पे मैं 11th-12th क्लास में कुछ में था, और एसएसआर का जैसे ही आया तो आई गॉट एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन इट। मुझे लगता था कि एसएसआर को मैं जस्टिस दिला के रहूँगा। मैं उस ग्रुप में चला गया, इस चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई, मैंने मार्क्स भी मेरे अच्छे नहीं आए, और मुझे बाद में पता चला ये सब फ्रॉड था। बट मेरे 2 साल इसके चक्कर में ख़राब हो गए, जिसमें अगर मैं थोड़ी पढ़ाई करता तो मेरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती। तो आप बताइए अब मैं मतलब क्या क्या करूँ आगे चल के। मैंने कहा यार, तो एनीवेज मैंने इसको कुछ रिप्लाई दिया, बट पॉइंट इज़ कि इस तरह के जो कल्ट हैं, दीज आर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरनेट की जो स्टडी है, लोगों ने बस एक सिंपल लेंस से कर दिया कि एसएसआर के बॉट अकाउंट हैं और उसके ऊपर प्रोपागेंडा है, राइट विंग प्रोपागेंडा कर रहा है क्योंकि उनको सरकार चेंज करनी है। मतलब ठीक है, एक एक एस्पेक्ट हो सकता है, छोटा सा, छोटा या बड़ा हो सकता है एक एस्पेक्ट, बट दिस इज़ नॉट द होल पिक्चर, और दिस इज नॉट हाउ इंटरनेट वर्क्स। इट्स नॉट और जस्ट अगर एक इतना आसान है सिंगल तो बार बार क्यों प्रोपोगेंडा नहीं हो बार रहा बार है? कर दो, किसी भी चीज़ पे कर दो, राइट, ऐसे नहीं होता। मतलब देयर हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ पुलिंग पीपल टुगेदर, राइट। पुलिंग पीपल फ्रॉम सच स्मॉल टाउन्स को अगर आप दे रहे हो, तो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल एंड सोशल लॉजिकल एनालिसिस टू दैट एज वेल। इट इज़ नॉट, एवरीथिंग इज नॉट only about politics. There are many aspects which works in the society, and there are also unexplainable aspect, तो उसको भी यू हैव टू से दैट कि ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल कार्ल यूंग ने मतलब साइकोलॉजी में बहुत कुछ लिखा, और एंड के डेज में बोला कि यार देर आर थिंग्स विच आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों एग्जिस्ट करती है। तो वो एंड में ही सेट कि like he also went into Indian राइट। meditation और उन सब के अंदर, but he and the end बोला I can't explain how certain things work, so we have to also leave that space कि भाई मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें, but something are beyond my Nice. capacity to explain कि ये world में होता क्यों है, I have no idea. That's very interesting because I don't know how you feel about it, whether it is QAnon or whether it is this. There's a certain darkness to It it. is. Okay, like the person is convinced. मुझे ऐसा लगता है कि I think the if there is quote unquote evil in the world, like in power structures and all, it is a very banal kind of evil. It is not like reptilian lizards and कुछ ऐसे there's a dark war going, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is just very powerful, very basic, very aggressive people, usually men in stretches of power. तो वो for a lot of very ordinary people comprehend करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना ही ऑर्डिनरी है इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस. सो दिस सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव कि एक ग्रेट इनजस्टिस हो गया, ठीक है, या एक साजिश हो गई, एक पता नहीं तुम्हें क्या चल रहा है बट हम निकालेंगे सच, लाइक दिस काइंड ऑफ अ narrative is a great hook to it, but it's coming from a place of great darkness and we don't know why it suddenly aggregates and where it disappears, क्योंकि वो कहीं पर अचानक से फूटते फूटते चला गया. It never got resolved actually. I don't think SSR thing got I resolved. think इसके अंदर वो भी है कि the people are always looking for reason and order in the world, and जब उन्हें लगता है कि Interesting. वर्ल्ड इतना ऑर्डरली और रीजनेबल और लॉजिकल नहीं है, थिंग्स कैन हैपन रैंडमली, then they get very upset about it, and then they try very hard to find some kind of a logic to it. जो Right. conspiracy theories होती हैं वो, that is their attempt and there is their desperation to find some kind of a order, some kind of a reasoning, but there sometimes there are no reasoning to No things reason. how they happen. तो वो एक एस्पेक्ट है। तो मुझे इनमें इनकी बेबसी ज़्यादा दिखाई देती है कॉन्स्पिरेसी Right. थियरिस्ट की, कि दे कांट बिलीव दैट समथिंग इज हैपनिंग Right. विदाउट एनी रीजन, समथिंग हैज़ हैपेंड, जस्ट हैज़ हैपेंड, लाइक That's सो। a very interesting point you've made because uh, even in my book and in my podcast, I've been noticing, I've written about this idea कि एक जो सेक्शन था हमारे सोसाइटी का, लाइक आवर एज पीपल हु आर लेट 30s अर्ली 40s, जब ये लोग कॉलेज में थे हम लोग, दे वर वेरी रैशनल, रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते थे, दे वर कैंपस में इवन वेरी ओपनली लाइक मार्क्सिस्ट ऑल्सो, लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट मार्क्सिस्ट थिंग्स, ऑल ऑफ दैट. Now suddenly in their 30s and 40s they've become very ritual heavy. They have started buying into all these conspiracy theories. And I used to wonder like some time ago, okay, like all these podcasters, Beer Biceps and many of these people, like ये
कोई अघोरी एंड दिस दैट एंड कल्ट एंड यक्षिनी, लाइक भूत पिशाच के ऊपर ये लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कौन सुनता है, लाइक व्हाई आर दे डूइंग दिस? बट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज इन द लास्ट 7-8 years things have become progressively bad, that there is like a sort of a subliminal subconscious डिज़ायर desire कि मुझे एक order बताओ, कि like there's a world with full of darkness and मेरा parasocial, not paranormal things which are perhaps explaining these ideas. मेरा एक दोस्त था जो मतलब है अभी भी कॉलेज टाइम से है, तो वो काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी सारी रैशनल माइंड और इस तरह का था, बट उसकी यूपीएससी की तैयारी करी, काफ़ी चीज़ें हुई नहीं, यूपीएससी नहीं हुआ, कंप्लीट डार्कनेस वाले जोन में गया काफ़ी साल तक, और फिर समझ नहीं आया कि लाइफ में करूँ क्या, और चीज़ें ख़राब से ख़राब होती गई लाइफ के अंदर। तो फाइनली ही इज़ नाउ डीप इन टू दीज राहु केतु एस्ट्रोलॉजी, और चंद्र यहाँ है, मंगल इधर है, एंड नाउ ही इज़ वेरी रिलैक्सड। आई मीन फॉर सम मुझे फ़ोन करके बोलता तू मानता नहीं है लेकिन यही होता है, मुझे समझ में आ गया, मैं ना अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरा राहु अभी यहाँ चल रहा है, मेरा मंगल अभी यहाँ चल रहा है, तो थोड़े टाइम में मेरा टाइम आ जाएगा। तो मैंने कहा ओके दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, बट उसका ये था कि मुझे भाई कोई डेस्परेट आंसर चाहिए कि ऑर्डर है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी रैंडम हो रहा है, कुछ तो ऑर्डर है कहीं से, तो Right. मैं इस चीज़ को पकड़ूं। तो लोगों की हालत भी इतनी ख़राब है कि दे वांट कि कहीं से तो पकड़ लूँ मैं इस चीज़ को जो जा रही है, मेरे हाथ में नहीं आ रही। तो उसके तरीके से लोग ढूंढते रहते हैं। तो इनके भी जो ऑडियंस है, पहले मुझे भी लगता था कौन सुनता है क्या सुनता है, बट आई थिंक दे आर पीपल हु आर completely clueless in life, Right. and there is a certain kind of melancholy around it, and they just want to नो आई एग्री find विथ यू। मैं something. बीच में Yeah. मजाक उड़ाता था अपने इंस्टाग्राम पे, कैसे किसी ने रील बना दी कि ऐसे ये पुड़िया बना लो, ऐसे कुछ कर लो, मंत्र जप दो, आपका अच्छा होगा। तो मैं उसका मजाक उड़ाता था कि ये क्या कर। फिर एक पॉइंट के बाद ना मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम द बुली हियर, क्योंकि द पर्सन हु इज क्रिएटिंग इट वेरी ऑफन इज क्रिएटिंग इट वेरी सिंसियरली, and the person who's consuming it is also consuming it with a certain sincerity. राइट, आई एम द इनसिंसियर वन हु इज लाइक है क्या कर रहे हो तुम। तो मुझे वो एक पॉइंट के बाद लाइक अजीब लगने लगा कि वाई एम आई मेकिंग फन ऑफ, ठीक है यार, लाइक आई डोंट अग्री विद इट, आई थिंक बहुत इरेशनल चीज तुम कर रहे हो, एक तरीके का डिरेंजमेंट ही लग रहा है मुझे, बट तुम बहुत शिद्दत से कर रहे हो वो हाँ, डिरेंजमेंट। मतलब क्या करें उनको, हाँ they don't have any other option of them. Like many people don't have any options in राइट। life. So हाँ, इसीलिए I don't give much thought to it because of that. तो Yeah. थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ा हम इसको चेंज करते हैं। यू ऑल्सो रिटन अबाउट these and you've actually been speaking about this, and I think you wrote also recently some articles about Indian tourists and tourism or India, because this is another genre of social media internet culture. ये तो अभी व्लॉग्स तो अभी बनने शुरू हैं, बट आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, देयर वाज अ फेसबुक एरा में एक फोटो वायरल हुई थी, फॉलो मी, एक कोई वाइट लड़की थी, हम उसका फेस कभी नहीं देखते हैं, सो वो बस ऐसे जा रही है, उसका हाथ पीछे है और कैमरा, मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ा हुआ है एंड शी इज गोइंग, और वो पीछे से फोटो खींच रहा है। तो और वॉन्डरलस्ट वाज अ जनरेशनल कॉल टू गो आउट देयर। हाँ, 2010-2011 में बहुत पीक पे था, लोग अपनी फेसबुक में एल्बम लगा रहे थे, मैं भी लगा रहा था उस टाइम, मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास, बट जहाँ कहीं भी थोड़ा सा मुझे लगता था कि हाँ ये थोड़ा आई एम क्यूरेटिंग दिस इमेज ऑफ अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन। अभी 2025-26 में भी जब मैं देख रहा हूँ कि दैट देयर इज अ स्ट्रेंज स्टैग्नेशन टू दैट, this idea that you go out and the world is full of adventures and possibility and you discover new things. Do you think that that experience has been totally um, rotted out by this over commodification of travel as a sense of discovery? वो भी है, लाइक वो जो वांडरलस्ट वाली ऑडियंस दैट वाज वेरी डिफरेंट, वो थोड़ी सी अपर क्लास और उस तरह की थी। अगर आप आजकल के व्लॉगर देखो तो ज़्यादातर दे आर नॉट फ्रॉम द अपर क्लास, जैसे ग्लोबल वो जो नॉमैड्स शुभम है जो नंबर 1 व्लॉगर है इंडिया का, ही इज़ फ्रॉम बिहार। तो इस तरह के बहुत सारे और भी हैं जो कि ट्रैवल जंकी और इस तरह के बहुत सारे थे। तो वो
अगर आप उनको स्टडी करो, जितने भी व्लॉगर हैं, दे आर नॉट रियली फ्रॉम अपर क्लास, और वो जो एक वांडरलस्ट या इंग्लिश स्पीकिंग जिनकी पॉश इंग्लिश है वो वाले नहीं है। हिंदी के लोग हैं ज़्यादातर, देसी स्टाइल में कंटेंट बनाते हैं और बाहर जाते हैं और जो चीज़ें दिख रही है वो दिखाते हैं, और ज़्यादातर इसमें वेजिटेरियन भी होते हैं जो दिखाते हैं कि मैं ये खा नहीं पा रहा, वो नहीं खा रहा। बट ये वाला जो क्लास है जिसको चुल बहुत थी ट्रैवल करने की, जब ट्रैवल करने का मौका आया, जब इन्होंने किया नहीं। अभी ये वाले लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इन ये ज़्यादा रिलेटेबल हैं। लेट्स से जो शुभम है वो बनाता है तो उसको हर कोई देखता है उसकी नज़रों से, फिर हर कोई घूम लेता है क्योंकि वो उनकी स्टाइल में बनाता है। बट हो सकता है कि जो अपर क्लास वाले हैं वो ऐसी ऐसी जगह रुकेंगे, ऐसी ऐसी जगह जाएंगे कि वो चीज़ लोगों के लिए ना तो एस्पिरेशनल है इस इकोनॉमी में, और ना ही कोई वो चीज़ें इतनी कोई रिलेटेबल हैं कि राइट। उनकी जो लाइफ स्ट्रगल है। तो इसके अंदर क्लास वाला एस्पेक्ट एक बहुत ही, वो भी एक अंडर रिसर्च्ड एस्पेक्ट है कि बहुत ज़्यादा है। तो अब ये नए नए जो ट्रैवलर हैं जो गए, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवलिंग में इतनी कोई रुचि नहीं है, बट उनकी इस बात में बहुत रुचि है कि ट्रैवलिंग एज अ व्लॉग बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। तो दे माइट नॉट बी लाइक ट्रैवलर हु आर इन्जॉइंग ट्रैवलिंग, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज उससे पैसे आ सकते हैं और उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। सो दैट बिकेम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ट्रैवल देन इन फॉर ट्रैवल ब्लॉगर्स फ्रॉम इंडिया। तो वहाँ पे फिर आप इसमें देखोगे कि तो कई तो बहुत अच्छे भी हैं, कई हैं जो बहुत ही गंदी हरकतें भी करते हैं बाहर जाके, क्लिक बेट के लिए या पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं वो, कुछ लड़कियों को छेड़ने का और वो सारी चीज़ें भी हुई थी जिसमें वो लड़कियों की फ़ोटो दिखा रहे थे। कई टर्की वगैरह में पकड़े गए थे सब ब्लॉगर, एक ही पकड़ा गया था सब ब्लॉगर। तो तो ये सारी चीज़ें भी इसमें एक आस्पेक्ट है कि अब फिर ट्रैवल का कोई भी, इंटरनेट पे कोई भी चीज़, इट्स नॉट जस्ट फॉर द लव ऑफ इट, द परफॉर्मेंस आस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिमिलरली इंडिया के अंदर जो व्लॉग बन रहे थे एक टाइम पे, लोग बना रहे थे कि वाराणसी में स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, इट्स अ फन कंट्री, पीपल आर नाइस, पीपल आर, बट एक टाइम के बाद जब इंडिया का इंटरनेट पे इमेज चेंज हो गया और बन गया एक स्कैम कंट्री, कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे स्कैम होता है। तो अभी उसके बाद देखा मैंने कि सब लोग फिर स्कैम्स पे ही वीडियो बनाने लगे। उनका ये था कि स्कैम्ड इन इंडिया, बिकॉज वो बहुत वर्क करता है। जैसे कि यूट्यूब पे डाल दो स्कैम, स्कैम इन इंडिया, आई गॉट स्कैम्ड, आई गॉट फाइनली स्कैम्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में स्कैम नहीं होते, इंडिया में 100% स्कैम होते हैं, बट आई एम सेइंग अ वेरी डिफरेंट पॉइंट कि वो एक जॉनरा है, इट वर्क्स अ लॉट। देन देयर आर मेनी पीपल हु आर सीकिंग स्कैम्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्ल रॉक्स है, उसने तो पूरा स्कैम पे अपना पूरा कंटेंट बनाया, ठीक है, उसने काफ़ी, उससे अवेयरनेस भी फैली, अच्छी बात है। फिर एक जैसे एक बॉल्ड एंड बैंकरप्ट है, उसने इनिशियली बनाया कि इंडिया बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है, और बीच में उसने एक, मैं उसका वीडियो मैंने दिखाया था कि वो क्या करता है कि एक जगह से जुराब खरीदता है और वो 4 जुराब खरीदता है, कहता है फोर 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 सॉक्स दे दो, तो वो दे देता है। फिर आके काउंटिंग करता है, ओह माय गॉड दिस आर ओनली 3, आई गॉट स्कैम्ड इन इंडिया, वो उसका वीडियो था। बट उसमें ट्रिक, मतलब फ़नी चीज़ ये हो गई कि उसके बगल में हारल्ड बॉल्डर करके एक ब्लॉगर बैठा था, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉगर। तो वो भी अपना व्लॉग बना रहा था, ये अपना इधर बना रहा था, तो गलती से वो चीज़ उसमें कैप्चर हो गई, उसके पीछे का वीडियो। वो क्या कर रहा है कि वो एक जुराब अपने पीछे रख देता है वो कैमरे में कह रहा है कि थ्रू गॉट स्कैम्ड इन इंडिया, गॉट स्कैम्ड इन इंडिया। तो अब मैं कोई इससे दो चीज़, मतलब मैं ये चीज़ बोलते हुए भी बड़ा केयरफुली बोल रहा हूँ कि इंडिया में हाँ स्कैम होते हैं, राइट। बट स्कैम टूरिज्म भी एक जो एस्पेक्ट है जिसके अंदर लोग इट स्कैम्ड इज़ देयर होना चाहते हैं। यूनिकनेस, हाँ, यूनिकनेस ऑफ देयर वीडियो। वीडियो तो वो वो, उनको स्कैम दिखाना है। तो उसके बाद में सब लोग सिर्फ इसी पे वीडियो बनाने लगे कि राइट। स्कैम्ड इन इंडिया, इंडिया लैंड ऑफ स्कैमर। तो वो एक जॉनरा पकड़ ली, और मतलब इंटरनेट ने पकड़ ली और व्लॉगर्स ने पकड़ ली, स्पेशली फॉरेन से जो आते थे उन्होंने पे बना दिया। फिर मैं इसको पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान में एक घोड़ा स्कैम है, तो वो कराची में एक पर्टिकुलर बीच है, तो वहाँ पे एक बंदा गया था, और उसको एक जो घोड़ा चलाने वाला था उसने उससे ज़्यादा पैसे मांग लिए। वो घोड़ा चलाने वाला टीनेजर था, कहीं अफ़गानिस्तान का माइग्रेंट था, तो वो आया था, तो उसने उससे ज़्यादा मांग लिया, उसने पूरा कैमरे पे कैप्चर कर लिया। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स का टूरिज़्म उन्होंने नया नया देखा था, क्योंकि रिसेंटली टूरिज्म के थ्रू आने, वो दे वर वेरी सीरियस, क्योंकि वो हर कोई उसके व्लॉग्स देख रहा था और उसकी जर्नी देख रहा था और खुश हो रहे थे कि हमारे यहाँ फॉरेनर आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा पाकिस्तान में हंगामा मच गया, सब लोग सॉरी मांग रहे हैं। जस्ट 1000 रुपीज़ का स्कैम था, बट उस गोरे से सब लोग नहीं ये था, सॉरी मांग रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर फाइनली लूक नाम था उसका, जिस जो बंदा था व्लॉगर, तो उसको फाइनली घोड़े वाले को पुलिस ने पकड़ा और बोला कि इसके सामने तू ये स्टेटमेंट दे,
तो कहता लूक भाई मेरे से गलती हो गई लूक भाई तो दैट होल थिंग became very but interesting thing then the second scammer went sorry then the second vlogger went to कराची अब उसको कराची में जाना उसी जगह पे है बिकॉज ही नोज यहाँ पे स्कैम होता है और वो शेडी सा एरिया है बीच का बीच तो अच्छा है बट वो एक शेडी सा एरिया आपको पता है यहाँ पे घोड़े के स्कैम होते हैं आपने वीडियो देख लिया तो आप अवॉइड कर सकते हो एज अ टूरिस्ट कि मैं घोड़े घोड़े पे नहीं बैठूंगा यहाँ पे स्कैम होता है ऑल्दो बट इम्प्रूव आपको खोज नहीं वो गए बट वो गया और उसके बाद साथ भी स्कैम हुआ उसके व्यूज स्काई रॉकेट हो गए तो इंडिया पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंटल स्कैम टूरिज्म की जो है वो उसके अंदर बन गई ऑल्दो इसमें मैं कुछ वो वाला एंगल नहीं दे रहा कि सब कॉन्टिनेंट को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं आई थिंक एक लार्जर जो आई थिंक उनकी ऑडियंस ऐसी है नहीं बट इसके अंदर एक सेकंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है अभी एक जो सबसे पॉपुलर ट्रेंड है चलो इंडिया में तो इन्होंने अपने हिसाब से दिखा दिया कि यहाँ पे भी स्कैमर है पाकिस्तानी भी स्कैमर है और अपने बांग्लादेशी भी स्कैमर है तीनों स्कैमर है ठीक है अभी नया ट्रेंड ये आ गया है कि अब जो वाइट सुप्रीमिस्ट कंटेंट है जिसके अंदर एक गोरा है जैसे कर्ट्स करके एक है बंदा ठीक है वो बहुत ही पॉपुलर है तो वो क्या करता है यूरोप के सारी कंट्रीज़ में जाता है जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस में गया और उसका कमेंट हो वाई फ्रांस इज़ डाइंग तो दिखाएगा यहाँ पे इतने पिक पॉकेट्स हैं ब्लैक्स बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ जाओ तो यहाँ पे तुम्हें अरब्स दिखाई देते हैं इटली में जाओ तो तुम्हें यहाँ पे अरब दिखाई दे रहे हैं Right, और right. यहाँ पे माइग्रेंट है बांग्लादेशी हैं दिस इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री यहाँ पे कोई इटालियन ही नहीं दिख रहा और यूरोप हमसे छीन लिया गया हम बेस्ट रेस थी यहाँ की हमारी रेस ख़त्म हो रही है तो अब उन्होंने हर कंट्री में जाके दे आर मेकिंग द लंदन इज़ डाइंग इटली इज़ डाइंग वो एंटी इमिग्रेशन पे बना रहे हैं बट वो लेकिन बोल ये रहे हैं कि यहाँ ये जो धरती है ये सब स्कैमर्स की लेकिन स्कैमर्स जो हैं वो थर्ड Migrant वर्ल्ड के माइग्रेंट्स हैं और जो रेस को हैं जो वाइट रेस को वो ख़त्म कर रहे हैं एंड वी हैव टू बी वायलेंटली अगेंस्ट देम यू विल थिंक दैट उसको यूट्यूब बैन करेगा यूट्यूब कुछ कम करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप उनके कमेंट सेक्शन में जाओ सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है उसके लिए सारे के सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि यू आर डूइंग गॉड्स वर्क सो ये भी एक एस्पेक्ट है इसमें No, there is definitely, I think, in the last 20 years, the narrative on globalization has changed. We grew up being told globalization is a great boon, that tourism, going away to different countries, is the best form of leisure that you can have. I think now there is a, unki jo audience hai, a section of them, they want this narrative ki show us like also how many times can you make like oh this country is so great videos there's a saturation of that also so this is also a form of content differentiation कि इंडिया में आया स्कैम हो रहा है आई एम गेसिंग सो दीज आर ऑल दीज वेरी डिफरेंट elements of it. But before we wrap up, I wanted to kind of ask you, you've covered such a huge range of internet subcultures. Of course, one person can't cover all of it. But like for instance, there is a whole subculture of fan fiction. There are whole subcultures of sports, cricket, for instance. Pornography अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन एरिया है जिसके ऊपर बहुत कम लिखा जाता है. देर आर ऑल दीज पोलिटिकल सब कल्चर्स जिसके ऊपर है लीडर्स का एंड रीजनल एंड इंटरसेक्शंस विद कास्ट. तो ऐसे बहुत सारे और भी होंगे मतलब. सो आई वांटेड टू आस्क यू, इज देयर समथिंग और सम subcultures that you wish you had actually written about in the book, included in the book, or you wish you had more time to think about it? Or would you ever want to talk more or write more one about chapter it? I wanted to write but वो इतना मुझे because that was a very ambitious chapter उसके अंदर जो current loneliness है उसको आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद 3 डिफरेंट सब कल्चर्स. तो एक तो स्ट्रीमिंग वाला उसमें है जो स्ट्रीमिंग पे लोग 6-6 घंटे देख रहे हैं 6-6 घंटे बैठे हैं इतने खाली कैसे हो सकते हैं लोग कि 6-6 घंटे आप देख रहे हो आपकी पर्सनल कुछ नहीं देख रहे आप सीधा वहाँ पे बैठे हो. तो ये वाला था. एंड देन वन था कि स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जैसे ओशो बूम हो गया इस जनरेशन में. ओशो के डिस्कोर्सेस मतलब लोग पायरेट कर रहे हैं टेलीग्राम पे डाल रहे हैं लोग सुन रहे हैं यूट्यूब डिलीट कर रहा है नया वीडियो आ रहा है. ओशो बिकेम
सम काइंड ऑफ अ, वो वैसे पढ़ी है ओशो की बुक वेरी तो अचानक देखा मैंने, तो ओशो बिकम ए वेरी सेंट्रल, जो लोग क्योंकि लोनलीनेस अगर ओशो नहीं हो तो शायद वो मतलब उन्हें समझ ही नहीं है क्या आएंगे, तो उनके लिए ओशो बिकम वेरी बिग थिंग, ओशो डिस्कोर्स, एंड आई ऑल्सो लिसन टू ओशो एंड आई लाइक हिम। सो वो सारी चीज़ें, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था वो जानने में कि ओशो अचानक इतना क्यों पॉपुलर हुआ। तो सेकेंड वन, थर्ड इज दैट लोगों ने स्टडी नहीं किया इस बारे में, बट द राइज ऑफ द कैम मॉडल्स इन इंडिया, ठीक है। तो अभी कैम मॉडल और टिपिंग कल्चर, ओनली फैंस तो एक वो है, प्राइवेट है, उसमें आप सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर लो फिर उसी को देख पाओ। उन्होंने एक जैसे स्ट्रिप चैट हैं और ये सारे हैं, तो उन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया है ग्लोबली जिसके अंदर कैम मॉडल्स होंगी, सारी कहीं की भी कैम मॉडल्स हो सकती हैं दुनिया भर की, दे कैन कम परफॉर्म ऑन द कैम, ठीक है, ऑब्वियसली द सेक्सुअल एक्ट, एंड यू एज अ व्यूअर कैन टिप देम, टक 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 टक, यू कैन गिव देम हंड्रेड So जैसे डॉलर like YouTube super chat type thing वैसा यूट्यूब type का. सुपर चैट, बट यू हैव टू रिचार्ज, तो उसके Right. अंदर इफ़ यू वांट टू गो प्राइवेट देन यू हैव टू गिव देम लाइक इतने टोकन पर मिनट, इतने टोकन, वो तो एंड में आपका हो सकता है कि अगर आपने 10 मिनट स्पेंड किया तो यू एंड अप स्पेंडिंग 2,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, एंड देर आर पीपल हु आर स्पेंडिंग money, and then there are models who are doing it through that, and it's just a screen thing, you know, there is no physical contact, but still people are spending so much of money on cam models. Then there are couples who are doing these act on the video, and the one Noida couple got arrested, by the way, because of this scam thing, not scam, the cam thing. So uske through he got arrested, and there are people who are doing it. So there is a very different kind of subculture around it. So I wanted to combine these 3 4 subculture and make some larger comment on some kind of a strange loneliness of the society and uselessness of the present and future, something I have wanted to It's a do, but it complete requires alienation which has come. एलिनिएशन, हाँ. एक अर्बन एलिनिएशन है जिसमें आप किसी को छू भी नहीं रहे हो, बट यू आर गेविंग सो मच ऑफ मनी, या कोई इंसान जो कब का मर चुका है वो शो, बट दैट इज़ योर ओनली होप इन या आप लाइफ, कोई स्ट्रीम कर रहा है आप 5-6 घंटे बस आप देख रहे हो उसकी लाइफ में योर लाइक अ सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी कैमरा, वाचिंग हाँ देयर देख रहे हो लाइफ. बस वहाँ से ऊपर बैठ के। सो दीज आई थिंक आर वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी इफ आई गेट नेक्स्ट बुक देन आई माइट राइट अबाउट इट। Fascinating. On that subject, do you have an idea for your like next book? I know it's very early days. You just got this one out. Do you have some ideas, or do you have some artistic projects that you want to work I on? want to make films more this What are you year. doing on that front? Like, tell us I a little bit have about. finished one documentary, so that we are sending to film festival. I have a EP, Fantastic. so Okay. who's Yashasvi Jual, who's also a filmmaker. So he's now sending it to many different film festival. Okay. But I really want to do. I mean, my first love remains filmmaking. So this year I'm doing everything to distract myself from filmmaking, which is very strange. Right. So this is one of the reason you asked me that why don't you have FOMO? Right. Because these things are still some in my subconscious. These are distractions, and I haven't done what exactly I want to do because my early youth was spent only on these things. But now this a different career trajectory has happened, which I enjoy, like, but I won't say I have a great respect for it. And since I don't have a great respect for these mediums, be it podcasting or even social media, I like it, but respect is different thing. I like them, but no great respect. Since I don't have respect, I can be very productive. Right. If you have respect You're for not any, measuring yourself by it. if you have respect for any medium, you will produce very less. So I'm lucky Right. that I don't have respect for podcasting. Right. But we are unlucky that, or the audience is unlucky. That means you're also not producing a lot of films. Yeah, I can't and because I have a lot of cinematic- respect and I'm scared of it. Yeah. Right, right. Fascinating. Thank you for sharing that, Anurag. And I think we are out of time. Before we go, I will just tell the audience, if you haven't already, please consider buying this book. We'll put it in the center somewhere. The Great Indian Brain Rot: Love, Lies, and Algorithms in Digital India. It's a fascinating collection of many diverse conversations which tie in together, and we've tried to cover some of those today, but like actually there's no way to kind of, you've written so much about it, from like Puneet Superstar to the toxic online positivity and
Baba Ka Dhaba, and like all of these very interesting topics. And thank you so much for sharing time with us today, Anurag. Thank you As so much. always, great fun. Always a pleasure talking to you. Thank you. Always, always, it is a Chalo. fun. Thank See you. you guys. Bye bye.